Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Welcome to lecture 35. In this lecture we will be starting the last topic of our course outline, that is single pot processing. So let's start with the introduction. Single pot processing was developed to provide the means for mixing, granulating, drying and blending pharmaceutical granulations in a single apparatus. Although equipment design varies from manufacturer to manufacturer, this category of processors consists of a high or low shear mixer granulators similar to conventional granulators and outfitted with a variety of drying options. Initially, vacuum was combined with a heat jacketed bowl to provide the means for drying in the single pot. Today, processors are available that provide vacuum drying with the microwaves or that percolate gas under low pressure into the vacuum chamber, that is processing bowl. Another very interesting improvement is the use of swinging processing bowls. सो सिंगल पॉट प्रोसेसिंग डेवलप किया गया था ताकि मिक्सिंग, ग्रैनुलेटिंग, ड्राइंग और ब्लेंडिंग ग्रैनुलेशंस की फार्मास्यूटिकल ग्रैनुलेशन प्रोसेसेस में एक सिंगल एपरेटस के अंदर की जा सके. सिंगल पॉट प्रोसेसर या सिंगल पॉट प्रोसेसिंग का इक्विपमेंट वेरी करता है डिज़ाइन में फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर, और डिफरेंट टाइप के प्रोसेसर्स इंक्लूड हैं इन डिज़ाइंस में. मोस्टली हाई या फिर लो शेयर मिक्सर ग्रैनुलेटर्स जो कि सिमिलर होते हैं कन्वेंशनल ग्रैनुलेटर्स में. दे आर आउटफिटेड विद अ वेराइटी ऑफ ड्राइंग ऑप्शंस. लाइक ग्रैनुलेटर हाई या लो शेयर मिक्सर ग्रैनुलेटर होता है, लेकिन उसे फिट किया जाता है विद ड्रायर या फिर ड्राइंग ऑप्शन के साथ. इनिशियली वैक्यूम कंबाइन किया जाता था विद हीट जैकेटेड बाउल ताकि ड्राइंग प्रोवाइड की जा सके एक सिंगल पॉट के अंदर. आजकल जो प्रोसेसेस अवेलेबल हैं उनमें वैक्यूम ड्राइंग के अलावा माइक्रोवेव ड्राइंग और गैस या पर्कुलेशन ड्राइंग लो प्रेशर्स के अंदर वैक्यूम चेम्बर में या प्रोसेसिंग बाउल्स में अवेलेबल है. एक और इंटरेस्टिंग इम्प्रूवमेंट जो सिंगल पॉट प्रोसेसिंग में है वो यूज़ ऑफ स्विंगिंग प्रोसेस बाउल्स हैं. फिगर के अंदर डिफरेंट टाइप के प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं. दिस इज़ Zenkita single pot processor which is made by Italy. In this single pot you can do all these steps from mixing till drying. There is another diagram of this Bol single pot processor. This diagram is the courtesy of Bol Group Germany. This is again a single pot processor where granulation and drying and mixing are all being carried out in a single apparatus. In a production setting, single pot processing may offer a number of advantages. By integrating granulating and drying capabilities into a single unit, capital investment in equipment and good manufacturing practice floor space may be lower than the other alternatives. The number of material handling steps is decreased. Consequently, the total processing time may be shorter while maintaining a high yield and keeping production support to a minimum. Environmental variables such as humidity are eliminated from the manufacturing processes, which may offer advantages for processing moisture-sensitive formulations. State of the art is to outfit a single pot processor with clean place system, thereby enhancing operator safety by minimizing exposure to the product both during manufacturing and during cleaning. किसी भी प्रोडक्शन सेटिंग के अंदर सिंगल पॉट प्रोसेसिंग में के डिफरेंट एडवांटेजेस हैं.
ग्रैनुलेशन और ड्राइंग को एक सिंगल यूनिट के अंदर करने की वजह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट को कम किया जा सकता है और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को मेंटेन किया जा सकता है बाय रिड्यूसिंग द फ्लोर स्पेस। जितने भी मटेरियल हैंडलिंग स्टेप्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। लाइक इफ द होल 3 processes आर बीइंग कैरिड आउट इन अ सिंगल कंटेनर, तो मटेरियल हैंडलिंग स्टेप्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से टोटल प्रोसेसिंग टाइम कम होगा और ये टोटल प्रोसेसिंग टाइम शॉर्टर होने की वजह से एक हाई यील्ड मेंटेन की जा सकती है या प्रोडक्शन सपोर्ट को मिनिमम किया जा सकता है। environmental variables like humidity, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में जहाँ पर सिंगल पार्ट प्रोसेस यूज़ हो रहा है उसे एलिमिनेट किया जा सकता है। एंड दिस ऑफर्स एन एडवांटेज जहाँ पर आप मॉइस्चर सेंसिटिव फॉर्मुलेशंस प्रिपेयर कर रहे होते हैं। सिंगल पार्ट प्रोसेसेस के अंदर क्लीन एंड प्लेस सिस्टम होने की वजह से ऑपरेटर सेफ्टी इन्हांस होती है और ऑपरेटर का एक्सपोजर मिनिमाइज होता है टू दी प्रोडक्ट बोथ ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड ड्यूरिंग क्लीनिंग। Requirements for solvent recovery systems are lower for single part processors compared with the fluid bed dryers. Single part processes outfitted with vacuum are attractive for evaporating events that are explosive or for containing drug substances with low exposure limits. The versatility and compactness of small scale 3 to 25 liter single pot processors also make the technology attractive for the development and pilot laboratory facilities. Within the last few years, equipment manufacturers began offering single pot processors that can accommodate the batch sizes required during early development, that is 0.3 gram to 10 gram, and the processors can be used as mixer blenders for direct compression formulations or as mixer granulators to prepare bed granulations for fluid bed drying or utilized for their full range of capabilities as single processing unit for all the steps required for granulation preparations. सॉल्वेंट रिकवरी सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट सिंगल पॉट प्रोसेसर्स के अंदर कम हो जाती हैं अगर हम इसे कंपेयर करते हैं फ्लूइड ड्राइज बेड ड्रायर्स के अंदर। सिंगल पॉट प्रोसेसर्स में एक वैक्यूम फिटेड होता है जो कि अट्रैक्टिव सोर्स प्रोवाइड करता है फॉर द इवेपोरेशन ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल्स और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, या जहाँ पर ड्रग सब्सटेंसेस ऐसे प्रेजेंट हैं जहाँ पर लो एक्सपोजर लिमिट्स रिक्वायर्ड हैं। वर्सेटैलिटी और कॉम्पैक्टनेस स्मॉल स्केल सिंगल पॉट प्रोसेसर्स की इस टेक्नोलॉजी को अट्रैक्टिव बनाती है फॉर डेवलपमेंट टेल पर्सपेक्टिव्स एंड पायलट लेबॉरेटरी फैसिलिटीज़। विद इन लास्ट फ्यू ईयर्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने सिंगल पॉट प्रोसेसर्स को डिफरेंट बैच साइजेस में एक्वायर करना शुरू किया, लाइक इन दी अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज जहाँ पर 0.3 ग्राम से लेके 10 kg तक का बैच बनता है ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। सो these processes can be used as mixer blenders for direct compression formulations, या फिर ये मिक्सर ग्रैनुलेटर्स का काम करते हैं टू प्रिपेयर वेट ग्रैनुलेशंस फॉर फ्लूइड बेड ड्राइंग, या फिर जब इन्हें फुल रेंज ऑफ कैपेबिलिटीज़ रिक्वायर होती हैं सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर फॉर ऑल दी स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड इन ग्रैनुलेशन प्रिपरेशंस। Typical single pot process. What is typical single pot process? The steps and sequence of manufacturing pharmaceutical granulations using single pot processing are the same as those that use alternative technologies, except that several of the steps are performed in the same product chamber. The majority of the production installations make use of its mixing, granulating, and drying capabilities during the processing of a single batch. Important to note is the absence of a milling step in between granulation and drying. The advantage of a reduced number of process steps is obvious, while the drawback is that
There is no possibility of breaking lumps generated during granulation. Single pot operations therefore require excellent control of the granulation to prevent the formation of oversized material. टिपिकल सिंगल पॉट प्रोसेस के अंदर स्टेप्स और सीक्वेंसेस फार्मास्यूटिकल ग्रैनुलेशन में सेम ही होते हैं, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि सिंगल पॉट प्रोसेसिंग में आप एक इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर इन डिफरेंट स्टेप्स को कैरी आउट किया जाता है। मेजॉरिटी प्रोडक्शन इंस्टॉलेशंस के अंदर मिक्सिंग, ग्रैनुलेशन और ड्राइंग ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एक बैच की प्रोसेसिंग के अंदर एक ही पॉट प्रोसेसर के अंदर होती हैं। मिलिंग स्टेप ड्यूरिंग ग्रैनुलेशन और ड्राइंग या बिटवीन ग्रैनुलेशन एंड ड्राइंग सिंगल पॉट प्रोसेस के अंदर नहीं हो सकता। सिंगल पॉट प्रोसेस का एडवांटेज ये है कि नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस रिड्यूस हो जाता है, नंबर ऑफ़ प्रोसेस स्टेप्स रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन ड्रॉबैक ये है कि अगर कोई लम्प्स फॉर्म हो जाए तो लम्प्स को ब्रेक करने के लिए मिलिंग या साइज़ रिडक्शन का कोई स्टेप ड्यूरिंग ग्रैनुलेशन या ड्यूरिंग ड्राइंग अवेलेबल नहीं है सिंगल पॉट प्रोसेस के अंदर। सिंगल पॉट ऑपरेशंस में इसी वजह से ग्रैनुलेशन के दौरान एक्सीलेंट कंट्रोल रिक्वायर होता है ताकि ओवरसाइज मटेरियल्स फॉर्म ना हो सकें। द फर्स्ट स्टेप इन सिंगल पॉट प्रोसेसिंग इज़ ड्राई मिक्सिंग. Powders are loaded into the single pot either manually for development and pilot scale units or by a conveying system for production scale units. Vacuum pumps used for the drying operation can also be used to charge the processor. Pneumatic and vacuum conveying systems contribute to minimizing operator exposure to the drug product. The powders are mixed in the dry state until the desired degree of uniformity is obtained. Depending on the geometry of the processing bowl and the efficiency of its mixing blades, optimal mixing for most processors generally occur when the bowl is charged to 50 to 75% of its capacity. Batch size, impeller speed, and mixing time are the variables that affect the desired degree of blend homogeneity before the addition of the binder solution. ड्राई मिक्सिंग पहला स्टेप है जिसमें पाउडर्स सिंगल पॉट के अंदर लोड किए जाते हैं दो तरीके से, या तो मैनुअली या फिर कन्वेइंग सिस्टम से। कन्वेइंग सिस्टम्स मोस्टली प्रोडक्शन स्केल यूनिट्स में यूज़ होता है और मैनुअल लोडिंग डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर या फिर पायलट स्केल यूनिट्स के अंदर यूज़ होती है। वैक्यूम पम्प्स ड्राइंग ऑपरेशंस के लिए यूज़ होते हैं और दे कैन बी यूज टू चार्ज दी प्रोसेसर। न्यूमेटिक और वैक्यूम कन्वेइंग सिस्टम्स कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि ऑपरेटर एक्सपोजर को मिनिमाइज़ किया जा सके ड्यूरिंग दी ट्रांसफ़र ऑफ ड्राई ड्रग प्रोडक्ट। पाउडर्स ड्राई स्टेट के अंदर मिक्स किए जाते हैं अनटिल अनलेस दे रीच द डिज़ायर्ड डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करते हुए प्रोसेसिंग बाउल की और एफिशिएंसी मिक्सिंग ब्लेड्स की के ऊपर ऑप्टिमल मिक्सिंग टाइम यूटिलाइज़ किया जाता है। ऑप्टिमल मिक्सिंग की जाती है जनरली जब बाउल 50 to 75% तक चार्ज हो जाता है अपनी कैपेसिटी में, तब मिक्सिंग ऑप्टिमल मिक्सिंग अचीव होती है। बैच साइज़, इम्पेलर स्पीड और मिक्सिंग टाइम वेरिएबल्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं डिज़ायर्ड डिग्री ऑफ ब्लेंड होमोजेनिटी के ऊपर बिफोर द एडिशन ऑफ द बाइंडर सॉल्यूशन। द सेकेंड स्टेप इन द सिंगल पॉट प्रोसेसिंग इज़ addition of binder solution. Once dry mixing is completed, the binder solution is added through a spray lance connected to a solvent delivery system such as a pressure pot or peristaltic pump. For highly viscous binder solutions, it is of advantage to use the vacuum system of the processor for sucking into the processor. Because the single pot processor is operating as a granulator at this point,
All variables considered during the manufacture of wet granulations in conventional high or low shear mixer granulators are applicable. Those variables include the rate of binder action, droplet size, and spray pattern. The last two being determined by the selection of the spray nozzle and the distance between the nozzle tip and the granulation bed. The speed of the main impeller and the granulating tool, for example, high intensity chopper bar, as well as the jacket temperature should also be controlled during binder addition. ड्राई मिक्सिंग जब कंप्लीट होती है तो बाइंडर सॉल्यूशन ऐड किया जाता है थ्रू स्प्रे, जो सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। हाई विस्कस बाइंडर सॉल्यूशन में एडवांटेज ये है कि वैक्यूम सिस्टम प्रोसेसर का सकिंग करता है इनटू दी प्रोसेसर, बिकॉज सिंगल पॉट प्रोसेसर ऑपरेट कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर, या एज अ ग्रैनुलेटर ऑपरेट कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर। तो तमाम वो वेरिएबल्स जो ड्यूरिंग वेट ग्रैनुलेशन प्रोसेस ग्रैनुलेशन के स्टेप के अंदर काउंट होते हैं, कन्वेंशनल प्रोसेस के अंदर जहाँ पर आप हाई या लो शेयर मिक्सर ग्रैनुलेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, वो तमाम के तमाम वेरिएबल्स यहाँ भी एप्लीकेबल हैं। उन वेरिएबल्स में रेट ऑफ बाइंडर एक्शन, ड्रॉपलेट साइज़ और स्प्रे पैटर्न, ये सब मैटर करता है। स्पीड मेन इम्पेलर की और ग्रैनुलेटिंग टूल, लाइक आप हाई इंटेंसिटी चॉपर बार यूज़ कर रहे हैं या किसी और तरह का ग्रैनुलेटिंग टूल यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा जैकेट का टेम्परेचर भी कंट्रोल करना होता है ड्यूरिंग बाइंडर एक्शन। द थर्ड स्टेप इन सिंगल पॉट प्रोसेसिंग इज़ वेट मासिंग। फॉलोइंग बाइंडर एडिशन, additional energy may be imparted to the granulation until the desired consistency is obtained. The speeds of the main impeller and granulating tool, wet massing time, and jacket temperature are variables that can affect the physical attributes of the granulation, like the bowl shape. The impeller design will also affect the amount of shear imparted to the granulation. बाइंडर एडिशन करने के बाद कुछ एडिशनल एनर्जी सप्लाई की जाती है ग्रैनुलेशन में, ताकि एक डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी अचीव की जा सके। मेन इम्पेलर ब्लेड की स्पीड और ग्रैनुलेशन टूल, वेट मासिंग टाइम, इसके अलावा जैकेट टेम्परेचर वेरिएबल्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं ग्रैनुलेशन में फ़िज़िकल एट्रीब्यूट्स को के ऊपर, लाइक बाउल शेप या फिर इम्पेलर डिज़ाइन अफेक्ट करेगा अमाउंट ऑफ शेयर इम्पार्टेड टू द ग्रैनुलेशन। ग्रैनुलेशन एंड पॉइंट को कंट्रोल किया जा सकता है बाय प्रोसेस टाइम, टेम्परेचर जो प्रोडक्ट बेड के अंदर है, या फिर एनर्जी कंजम्पशन या टॉर्क जो मेन इम्पेलर के ऊपर लग रहा है। The fourth step in single pot processing is drying. After granulation, the material is dried using one of three approaches: vacuum drying, gas assisted vacuum drying, or microwave vacuum drying. The product bed is usually stirred at low intensity during the drying process to facilitate solvent removal and promote uniform drying, as well as to prevent caking of the granulation on the chamber's wall. ग्रैनुलेशन के बाद जो मटेरियल वेट मास की फॉर्म में प्रेजेंट है, उस मटेरियल को ड्राई किया जाता है बाय यूजिंग एनी ऑफ दीज थ्री अप्रोचेस, ईदर बाय वैक्यूम ड्राइंग या फिर गैस असिस्टेड वैक्यूम ड्राइंग से, या फिर माइक्रोवेव वैक्यूम ड्राइंग से। जो प्रोडक्ट बेड प्रेजेंट होता है वो यूजुअली स्टर्ड किया जाता है लो इंटेंसिटी के ऊपर ड्यूरिंग ड्राइंग प्रोसेस, ताकि सॉल्वेंट रिमूवल को फैसिलिटेट किया जा सके और यूनिफॉर्म ड्राइंग को प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा केकिंग को प्रिवेंट किया जा सके ग्रैनुलेशन में, मोस्टली चेम्बर ग्रैनुलेशन के इक्विपमेंट की चेम्बर वॉल्स पे। Agitation may be applied by slowly tilting the bowl or operating the impeller at low speed, either continuously or intermittently throughout the drying stage.
Caution must be exercised to avoid granule breakdown during drying, which may result in unfavorable compression characteristics. Variables for vacuum drying include the level of vacuum maintained in the bowl, the jacketed temperature, and the degree of agitation. In addition to parameters listed for vacuum drying, gas-assisted vacuum drying must also consider the type of drying gas used and its rate of delivery. Agitation अप्लाई करते हैं बाय स्लोली टिल्टिंग दी बाउल या फिर इम्पेलर को ऑपरेट करके एक लो स्पीड में या तो कंटिन्यूसली या फिर इंटरमिटेंटली थ्रू आउट द ड्राइंग स्टेज। इस सारे प्रोसेस के अंदर कॉशन ज़रूरी होता है ताकि ग्रैन्यूल टूट ना जाए ड्यूरिंग ड्राइंग। अगर ग्रैन्यूल टूट जाते हैं या ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो ये अनफेवरेबल कंप्रेशन को लीड करेंगे, अनफेवरेबल कंप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को लीड करेंगे। वैक्यूम ड्राइंग में वेरिएबल्स मोस्टली जो इंक्लूडेड होते हैं वो लेवल ऑफ वैक्यूम मेंटेन इन द बाउल कि कितनी अमाउंट के अंदर आपने कितने लेवल का वैक्यूम बाउल में मेंटेन किया है, जैकेट का टेम्परेचर कितना है और डिग्री ऑफ एजिटेशन कितनी है। इसके अलावा वैक्यूम ड्राइंग में गैस असिस्टेड वैक्यूम ड्राइंग एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जिसमें टाइप ऑफ ड्राइंग गैस और उसकी रेट ऑफ डिलीवरी को भी कंसिडर किया जाता है एज अ वेरिएबल। When microwave vacuum drying is used, all of the variables used for vacuum drying are applicable, as well as the level of microwave power used to dry the granulation. If yield is of greater importance than process time, a very interesting process option is to follow with the wall temperature very closely the product temperature and use as a source of drying energy only the introduced microwave energy. This mode of operation minimizes the amount of material sticking to the walls for the price of a prolonged drying operation, resulting in a reduced throughput. This option is of special interest for the processing of highly expensive materials. जब माइक्रोवेव वैक्यूम ड्राइंग यूज़ की जाती है तो वो सारे वेरिएबल्स जो वैक्यूम ड्राइंग के ऊपर एप्लीकेबल हैं वो माइक्रोवेव वैक्यूम ड्राइंग के ऊपर भी एप्लीकेबल हैं। इसके अलावा माइक्रोवेव की पावर जो माइक्रोवेव वैक्यूम ड्राइंग में यूज़ की जा रही है ड्यूरिंग ग्रैनुलेशन ड्राइंग वो एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है जिसे कंसिडर करना होता है। अगर यील्ड की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है प्रोसेस टाइम से तो प्रोसेस ऑप्शन में एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन ये होता है कि वॉल टेम्परेचर को क्लोजली फॉलो किया जाता है टू द प्रोडक्ट टेम्परेचर और वॉल टेम्परेचर को एज अ सोर्स ऑफ ड्राइंग यूज़ किया जाता है, ड्राइंग एनर्जी यूज़ किया जाता है ताकि माइक्रोवेव एनर्जी की इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके। इस तरह का मोड ऑफ ऑपरेशन अमाउंट ऑफ मटेरियल स्टिकिंग को मिनिमाइज करता है टू दी वॉल जो कि एक्चुअली प्रोलॉन्ग ड्राइंग ऑपरेशन है लेकिन रिजल्ट करता है रिड्यूस थ्रूपुट के अंदर। If required, cooling can be conducted at the conclusion of the drying operation. The heated water or steam in the bowl jacket which supplied conductive heat during the drying process can be replaced with a glycol water solution to provide a contact surface as low as 10 degrees Celsius. Another approach to cool the granulation is by purging a cooling gas into the single pot while agitating the granulation bed. The next step in single pot processing is sizing and lubrication. Once the granulation is dried, it is usually necessary to size it. This may be accomplished by discharging the material through an inline mill into a receiving vessel where it may be blended with any remaining excipients, for example, lubricants and flavors. This process design maintains the containment benefits of a single pot process. Alternatively, the remaining excipients may be added to the single pot processor and blended with the granulation before discharging and milling.
This approach requires that the lubricant be adequately distributed during milling and material transfer during the compression and operation. फिफ्थ स्टेप साइजिंग या लुब्रिकेशन कैन। ग्रैन्यूल जैसे ही ग्रैनुलेशन में ड्राइंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो यूजुअली ये नेसेसिटेट करता है कि जितने भी ग्रैन्यूल्स ड्राई ऑफ का हो चुके हैं उन्हें यूनिफॉर्म साइज़ के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। इसको कंप्लीट करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए हमें मटेरियल को डिस्चार्ज करना पड़ता है फ्रॉम दी सिंगल प्रोड प्रोसेस इनटू इनलाइन मिल या एक रिसीविंग मिल के अंदर, जहाँ पर इसे ब्लेंड किया जाएगा विद रिमेनिंग एक्सीपिएंट्स लाइक लुब्रिकेंट्स या फ्लेवर्स के साथ। ये प्रोसेस डिज़ाइन कंटेनमेंट बेनिफिट्स मेंटेन करता है सिंगल पॉट प्रोसेस के। अल्टरनेटिवली जो रिमेनिंग एक्सीपिएंट्स हैं उनको ऐड भी किया जा सकता है सिंगल पॉट प्रोसेसर के अंदर ही, जहाँ पर साइजिंग रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन लुब्रिकेशन रिक्वायर्ड है, और ब्लेंडिंग कंप्लीट होती है विद द लुब्रिकेंट एंड फ्लेवरिंग एजेंट बिफोर डिस्चार्जिंग एंड बिफोर मिलिंग। इस अप्रोच में जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो ये कि लुब्रिकेंट एडिक्वेटली डिस्ट्रीब्यूट हो ड्यूरिंग मिलिंग प्रोसेस, और मटेरियल ट्रांसफ़र या ड्यूरिंग द कंप्रेशन ऑपरेशन में लुब्रिकेंट एडिक्वेटली प्रेजेंट हो। So this was all about the typical process steps of single pot processing. In next lecture we will be continuing our discussion on drying methods for single pot processors. Till then, take care of yourself and everyone around you. Allah Hafiz.